and entrepreneurship is all about turning those dreams into reality. Good morning everyone. कहते हैं हर बड़ा बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है और हर बड़ा इवेंट दो होस्ट से। तो आज के इस खास दिन पर हम लेकर आए आइडियाज, इनोवेशन एंड थोड़ा सा मोटिवेशन। It gives us immense pleasure to welcome you all to this wonderful celebration of World Entrepreneurship Day. मैं हूँ समीक्षा And I am Amrit. And together we are your hosts for today. On behalf of our respected principal and IIC President Dr. Surendra Kaur, our IIC convener Mrs. Vivek, and program coordinators Mrs. Nishi Grover and Dr. Natasha ma'am, and I extend a spectacular high energy morning welcome to our esteemed chief guest of the day, Mr. Balwinder sir, with their team Ms. Vandana, and anchor, organizer and motivational speaker, and Mr. Satyam sir, chief editor of Yamuna Sandesh and Haryana Ka Paigam newspapers. Our inspiring successful alumni stars, Mrs. Vishwabala Bahul ma'am, Mrs. Anju ma'am, Mrs. Malika, Ms. Damanpreet Kaur, creative teachers and the brightest sparks of tomorrow, the proud girls of DAV College for Girls, Yamunanagar. Huge round of applause. Before we begin, a massive thank you to our incredible principal ma'am for giving us the wings and platform to prove that our ideas can rule the business world. To begin this auspicious journey on an elegant note, हर शुभ शुरुआत एक रोशनी से होती है. So let us inaugurate the celebration of innovation by lighting the traditional lamp of knowledge and positivity. I respectfully invite our esteemed chief guests, our brilliant alumni stars, and our IIC convener and program coordinators to kindly come forward for this ceremony. Let's welcome our dignitaries to the stage with a huge round of applause. May this rising flame ignite the fire of innovation and creativity in all our hearts today. तालियां बजती रहें। जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। Thank you. आयो दोनों बच्चे इकट्ठे आ जाओ। जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। May this rising flame ignite the fire of innovation and creativity in all our hearts today. जहाँ ज्ञान का दीप जलता है वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है. Sir, thank you for being a true role model of entrepreneurship for all our students today. Keep applauding, students. Mrs. Anju Gambhir ma'am, we are very happy to have you here. Thank you ma'am. Pathshala, Charan Ashrit Shri Pundrik Goswami, sir, their incredible journey. Ma'am, we are so honored to have you with us today. हेलो एवरीवन, पहले तो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल और मैं प्रिंसिपल मैम ਦਾ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ कि मैं कुछ अपनी बिजनेस के बारे या अपनी बिजनेस जर्नी बारे बता सका। अगर अपनी जर्नी की बात करूँ 98 में मैं जब
कॉलेज से, खालसा कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है। तो वहाँ से जब हम लोग निकले तो पापा का बिजनेस था, पर कुछ अलग करना है कि कुछ सबसे अलग करना है। तो डैडी को, पापा को मैंने यही कहा, मैं डैडी मैं कहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं आंदा। पापा ने क्लीयर जवाब दिता कि मैं तेन पैसे नहीं देता कुछ भी। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं पैसे नहीं चाहिए, बस ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ है या ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मेरा खून च दिखाई है। एक हिम्मत, फिर गुरुद्वारे जाके अरदास की थी। स्टार्टिंग एक छोटी जी ट्रेडिंग तो की जिन्नी नॉलेज थी थोड़ी जी। ट्रेडिंग तो करने तो बाद 1 साल ट्रेडिंग की, कुछ फंड इकट्ठा होया। मशीनरी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ प्लाईवुड मशीनरी ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ प्लाईवुड ਸਾਡੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 95 96 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ.ਕੇ. प्लाईवुड ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, पर हिम्मत उन्होंने भी बहुत रखी। अज अकाल पुरख के बहुत शुक्र है कि असी बहुत अच्छे लैवल पर हाँ और कुछ ना कुछ नई नवे प्रोडक्ट उत्ते लियान से लगे रहने हैं कि हाँ भी कोई नवा प्रोडक्ट बनाइए। कुछ नई मशीनरी जी है जिदे अच्छी प्रोडक्शन और चाइना को जवाब दे सकी कि बई असी सपना भी लेने हाँ और असी खुली अखा नाल सपना लेने, अखा बंद करके सपना नहीं लेंदे। साडे अगर सरकार की गल करिए, मोदी जी देखो हूँ बहुत अच्छी उन्होंने स्कीम भी लियाई लैके आए हैं कि जोड़ा बिजनेस में ग्रोथ मिले और बिजनेस में अगे जितना असी बढ़ा सकीए ताकि साड़ी कंट्री जी इकनॉमी है, जोड़ा साडा बजट है वो भी बढ़े। और उस तो बाद लाइफ से स्ट्रगल आंदियां ने, ऐसा नहीं है कि नहीं आंदियां। तो फिर असी लाइफ की स्ट्रगल में गल करिए तो फिर भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन जी को पैगाम दिता कि भाई तू की देख रहे हैं, तू किनू मार रहे हैं, ना तो तू किसी को मार रहे हैं ना तू किसी को जन्म दे सकता, तू मैनू ही मार रहा है और मैं ही मैनू मार रहा। तो वो गल जी है ये चीज़ असी अगर देखिए तो असी कुछ नहीं करते, वो करवा रहे हैं। वो सिर्फ सानू हिम्मत दे रहा है, उठना असी आप है, करना असी आप है। उन्हें हिम्मत देती, सानू जन्म देता, सानू संपूर्ण अंग दिते, सोचण की समझण की। हूँ मैं अगर मैडम की गल करा 70 ईयर के हुए ने तो मतलब बिल्कुल एक्टिव ने बहुत ज़्यादा। तो जो वो परमात्मा की जी है एक असी उन्होंने याद रखते हैं। उस तो इलावा परमात्मा तो इलावा जो सब तो मेन गल है कि साढ़े अंदर ही साडा परमात्मा है। जो सानू किसी बिजनेस या किसी चीज़ के कोई टेंशन होती है, कोई दिक्कत होती है तो मैं की कर लेता है, मैं सवेरे 3 बजे उठ के ना स्नान वगैरह करके 4 बजे पाठ करन बैठना। उस तो बाद अरदास करके शीशे के सामने बैठ के खुद में गल करता, यार तू कितने घट सी, कितने कमी रहेगी। तो फिर अपना जवाब अपने आप मिलता है कि भाई कितने कमी सी, उस कमी को दूर करो। आँदी है लाइफ के स्ट्रगल करने बहुत ज़्यादा दिक्कत आँदियाँ ने, और जो दिक्कत ना आए तो फिर बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। असं कोई भी बिजनेस करांगे तो वो वास्ते पहले तैयार रहना पड़ेगा कि असी भाई कोई भी मुसीबत किसी भी टाइम बिना पे आ सकती है। और साड़ियाँ धियाँ तो भैन, मेरी जी फर्म है बलराज हाइड्रो इंडस्ट्री, वो प्रोप्राइटर मेरी वाइफ ही है पवनजीत कौर। और मैं तो खैर कई बार इसे मजाक करने, मैं तो यार उत्ते चपरासी है। तो वो अज भी मैं उन्होंने कहा, मैं कि तुम मेरे नाल चलो, कॉलेज का फंक्शन है। कहते नहीं मैं तुम कल ऐसे रखा है। मैं कहा चलो ठीक है। अज मैं मनजीत मैम ने कहा तो मनजीत मैम कहती कि नैक्सट टाइम उन्होंने बुलावांगे। मैं कहती वो तो तुम्हें आना पैना स्पैशली। और इस तो अलावा अगर बिजनेस तुसी सोच लोगे तो फिर एक स्टैप चल लिया, यानी कि तुसी सोच लिया ना तो एक स्टैप सीढ़ी का चढ़ गए, फिर उस तो पैर पीछे नहीं करना, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी रोके टोके, कोई भी तुहानू मतलब कि तुहानू इतने तक भी कहेंगे कि तेरे वास्ता नहीं है, तेरे वास्ता नहीं है। तो ही फिर गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने कहा कि जब तू मैनू सौंपिया तो मैं तेरा बंदा, जब तू मैनू सोच दे दी तो फिर मैं सोच तो तू दी है ना, तू आपे नाल चल। तो उस तो इलावा स्ट्रगल है लाइफ के होंदा है, मज़ा भी आता काम करने का। जिथे दिक्कत आती है उत्थे चुनौती है, भाई सरकार करो उन्होंने, और जिन्ना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है उन्होंने करो। असी स्टार्टिंग प्लाईवुड मशीनरी तो की, मैं जी अकेले की, असी मतलब 2000 के
2000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2016 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। अपने एक दोस्त ने माइक्रोटेक इंडस्ट्री मिश्रा जी मतलब दोस्त भी ऐसे रखो ਜਿਹੜੇ मोटिवेट ਕਰਨ ਵੀ मोटिवेट ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਈ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋ ਫਿਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ 2028 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं जी। और फिर मैं प्रिंसिपल मैम और आज आए नहीं, आज कितने बिजी हो गए, उन्होंने कोई काम पै गया जरूरी, और मनजीत मैम और बाकी भी जितने भी प्रोफेसर वगैरह ने सब का थैंक यू कहूँगा कि तुसी सानू बोलन का चांस दिता और एक मौका बख्शा। ओके बाकी Hi, वंदना सप्रा, एंकर, ऑर्गेनाइजर एंड मोटिवेशन स्पीकर। सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे आज के चीफ गेस्ट सरदार बलविंदर सिंह जी का, फिर हमारे मनजीत मैम, प्रिंसिपल मैम और आप सभी प्रोफेसर्स, लेक्चरर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं 2 मिनट अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कि मोटिवेट कर सकूँ। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में बताया, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ ठान लेते हो ना तो आप करके ही उसमें सांस लोगे। ठीक है थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ डिपेंड करता है लक पे भी, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ी लेट मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप में वो पैशन है, वो डेडिकेशन है और हार्ड वर्क से आप नहीं घबरा रहे तो बेटा वन डे यू विल गेट अ ग्रैंड सक्सेस। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आई एम 56 ईयर्स ओल्ड। ऐसा नहीं है ये मैं एंकरिंग यंग एज में भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली, हस्बैंड, डॉटर आज मेरी कनाडा में है, 10 साल हो गए, शी इज़ 33 ईयर्स ओल्ड। तो वही है कि अपना पहले फैमिली भी ज़रूरी होती है लेडीज़ के लिए देखना। तो उसके बाद बेटा अगर मैं इस एज में कर रही हूँ तो आप तो अभी बहुत बहुत छोटे, बहुत यंग हो, आप कहीं भी कुछ भी अचीव कर सकते हो। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, कोशिश तो अपने फील्ड से ही करो। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हो तो फैशन डिज़ाइनिंग के BBA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, कंप्यूटर्स का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले तो आप कोशिश करो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ करो, क्योंकि उसमें आपने यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो। फिर भी अगर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए, तो कोई बात नहीं। आज तो इतना स्कोप है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ऑब्वियसली है ही है। अब मैं एंकर हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर के लिए एज कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में मैं गई थी पीछे, तो बुला रहे हैं। तो ये भी मतलब मैं एक अपना पैशन था, शौक से करती थी, लेकिन आज लोग मुझे पे भी करते हैं। सो दिस इज़ अ रियल इनकम। सो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि अगर आप में स्टडीज़ के साथ साथ कुछ और क्वालिटीज़ हैं तो वो भी बच्चों आप यूज़ करके आप अचीव कर सकते हो। सो मैं एक बार फिर अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि बेटा कभी भी निराश मत होना। जैसे हमारे सर ने, आज के चीफ गेस्ट बलविंदर जी ने बताया कि मुश्किलें आएंगी
ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, टाइम नहीं है और वैसे भी सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना स्ट्रगल, इतना हार्ड वर्क, पर टुडे आई एम हैप्पी। क्योंकि जब मैं एंकरिंग के लिए जाती हूँ, अभी मैं पीछे पंजाब एंकरिंग करके आई हूँ, डेरा बसी, तो वहाँ पे मैम ने पूछा, जो ऑर्गेनाइज़र थे, कि अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग जल्दी करेंगे तो सब आओगे, क्योंकि कोई रोपड़ से था, कोई लुधियाना से था, अलग अलग सिटी से थे। लोगों ने यस बोल के, पता है क्या बोला? आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, कहते एंकर हमें यही चाहिए, सो दिस इज़ माई रियल इनकम। कि अगर उन्होंने ये बोला कि एंकर हमें यही चाहिए, तो बस बच्चों ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि हमारे सभी गेस्ट हैं, तो इतना ही कहना चाहूँगी, बस आपको मोटिवेट करूँगी। जीवन में मुश्किलें बहुत आएंगी, मुझे भी बहुत आई हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं, और अगर कभी किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप मैम से मेरा नंबर ले लीजिएगा, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। किसी भी फील्ड में अगर आपको लगता है आप घबरा रहे हो, हमने स्ट्रेस नहीं लेना, हमने डिप्रेशन में नहीं जाना। अगर मोटिवेशन स्पीकर का ये नहीं है कि मैं स्कूल कॉलेज में गई, 2 मिनट की स्पीच दी और घर आ गई, ठीक है जी बहुत अच्छा हो गया, नहीं। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी 10 साल से काम कर रही हूँ, कि मैं आप सभी को और आपके जैसी और भी बच्चियों को, बहनों को मोटिवेट करूँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और एक ना एक दिन सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू आवर चीफ गेस्ट, आवर स्पेशल गेस्ट मनजीत मैम एंड डॉक्टर सुरेंद्र कौर जी प्रिंसिपल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सर ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਟਰੂਲੀ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। Entrepreneurship is not just about starting a company. It's all about identifying opportunities, solving problems, taking calculated risk and creating something valuable. और हमारे लिए entrepreneurship का मतलब है अपनी सोच को सिर्फ दिमाग में रखने की बजाय उसे रियलिटी में लेकर आना। It is about believing that an ordinary idea can become extraordinary opportunity. और शायद इसी वजह से हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कॉलेज के बाद अपने आइडियाज़ को सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें करके दिखाया, हासिल करके दिखाया और अपना एक नाम बनाया है। आज का दिन सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नहीं है। It is for everyone who has an idea, a dream, and most importantly, the courage to turn that idea into reality. Please have a huge round of applause for all our great entrepreneurs. कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सफलता के लिए कोशिशों की पहचान होती है। And today we are honored to have among us someone who has turned dreams into determination and determination into achievement. Our esteemed alumni, Mrs. Vishwabala Behal ma'am, a proud member of 1993 batch of fashion designing. प्रिंसिपल मैडम जो आज किसी वजह से नहीं आ पाई है, स्टाफ मेंबर्स, मंजीत जी एंड प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको कोई लेक्चर देने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ। मैं आपने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कुछ और चली जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी लाइफ के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी इंसान इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। इम्पॉसिबल को अगर हम बाइफरकेट करें तो उसका मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। अगर हम मेहनत करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम विश्वबाला बहल है, मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद मैंने बीएड भी किया है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरी मैरिज हो गई और उसके बाद मैंने अपने घर को पूरा टाइम दिया। मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर। मेरी तीनों बेटियां इसी लाइन में हैं और उन्होंने मेरा सिर फख्र से ऊंचा किया है। और मेरा एक बेटा है जो कतर में रहता है, उसके पास एक छोटा ग्रैंडसन है, मेरा ग्रैंडसन है। उसको मैं आज लाना चाह रही थी लेकिन वो भी सोया हुआ था, तो उठा के नहीं ला सकती। और उसके पैदा होने के बाद में, अपने बेटे के पैदा होने के बाद मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद अपना सोचा कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करूँ। मुश्किलें तो बहुत आई, शुरू में तो बहुत मुश्किलें आती हैं। इसमें टीजिंग इश्यूज़ काफ़ी थे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी मुश्किल थी मटेरियल लाकर और अच्छा सामान और कपड़ा लोगों को प्रोवाइड कराना और कुछ नया करके दिखाना। वो भी मेरे को आस्ते आस्ते आसान हुआ मेरे लिए। और उसके बाद सेकंड था एक हमारी टीम बनाना, जिससे हम मिलकर काम कर सकें।
और ईश्वर की कृपा से 30 से 31 साल हो गए मेरे को ये बुटीक चलाते हुए, और मेरे पास 25 साल तक के पुराने कारीगर आज भी हैं जो मेरे साथ आज भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने मतलब वो दोनों प्रॉब्लम्स बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुई, लेकिन फिर वो चुनौतियाँ जो थी वो मेरे लिए मेरा साहस बन गई और मैंने उनको लेना शुरू किया कि भाई आसान हो जाए मेरी लाइफ। और भगवान जी ने पूरी मदद की मेरी। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे उन्होंने सब कुछ दिया, अच्छे बच्चे, अच्छा बिजनेस, अच्छा कैरियर, इन सब में मेरे हस्बैंड का भी मेरा पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। कोई भी वुमेन काम तभी अच्छे से कर सकती है जब उसके हस्बैंड का और उसके परिवार का, उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का सपोर्ट उसके साथ हो। तो मैं तो आप बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बुटीक ही खोलें या कुछ ऐसा ही करें, जो आपकी फील्ड है उसमें आप जाएं और उसको आप एक एम निश्चित कर लें और उसके ऊपर चलते रहें, तो भगवान आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई मेंबर्स, माई सोशल टीम एंड माई बच्चे। Radhe Radhe everyone present here, to all the teachers, all the respected ma'am, principal ma'am जो आज किसी वजह से हमारे पास नहीं है, और सभी students. Standing here today is very special for me because I was once sitting where you are. So I studied in this situation, in this institution, and I continued my fashion designing in 2001 batch. उसके बाद हमने छोटा सा यूनिट बनाया जिसमें हम फ्रॉक्स और शीट्स बनाते थे, और लड़कियां मेरे पास थीं और मैं उनको ट्रेन करती थी। कस्टमाइज्ड दोहर्स और कस्टमाइज्ड नाइट सूट्स, ये छोटा सा यूनिट था। साथ साथ क्योंकि बच्चों को भी देखना था, फैमिली को भी कंटिन्यू करना था, तो ये सब सिचुएशन रही। स्टार्टिंग में 10 साल तक हमने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। उसके बाद हमारी टीम डिस्पर्स हुई क्योंकि जो लड़कियां थीं उनकी शादी हो गई और फ्री हो गए एक बार। तो फिर उसके बाद 1 साल तक मैं ऐसे ही मतलब सोचों में रही कि अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। Then my new journey began as an entrepreneur in 2014 and मैंने शुरुआत की वाव कलेक्शन यमुनानगर के साथ। एंड इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छा बिजनेस हमने किया यमुनानगर में। डिजिटली इस चीज़ को हम लेके आए, व्हाट्सएप के थ्रू हमने ग्रुप्स क्रिएट किए और अच्छा बिजनेस हमने किया बहुत अच्छे से। और उसके बाद लेकिन आज जहाँ मैं खड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारी जो एनर्जी है वो मेरे इष्ट श्री राधा रमन लाल जी से और मेरे गुरुदेव श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज एंड रेणुका गोस्वामी मैया, उनसे आ रही है। और मुझे वो हर सिचुएशन में मोटिवेट करते हैं कि यू डोंट हैव टू लुक बैक। आपको पीछे मुड़कर अपनी लाइफ के कोई भी कटु एक्सपीरियंसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठने की कोशिश ही मत करो, आप उनको बिठाओ जिनका आपके अंदर आपको लगता है कि बिलीफ है। तो उसी एनर्जी को साथ लेके परिवार को आगे लेके बढ़ना और समाज में खड़े होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि प्लीज़ आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट ज़रूर रहिए, क्योंकि आप लोग जो है फाउंडेशन है अब आने वाले समाज के लिए। बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं समाज में छोटे छोटे बच्चे जो हैं टीचर की एक छोटी सी डांट से बालकनी से कूद रहे हैं और इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट्स छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। और बहुत सारा क्राइम आज की सोसाइटी में अनगिनत तरह का हम देख रहे हैं। तो आप लोगों जो है फाउंडेशन है गर्ल्स। इंडिपेंडेंस को मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन हम अपने जो लव्ड वंस हैं, जो अपने आसपास हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में खड़े होने के लिए जो लोग हैं, उनके साथ कनेक्टेड ज़रूर रहिए
और आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स में इस चीज़ को पास ऑन कर पाएंगे इजीली, और आप उनको बिल्डअप कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की कोविड के दौरान, जब सारी दुनिया घबराई हुई थी, तब हम चारों, दोनों मेरे बच्चों ने और हमने मिलके कोविड के दौरान खूब अध्ययन किया। हमने रामचरितमानस का पाठ किया, चैतन्य चरितामृत का पाठ किया और भगवद गीता के श्लोक का पाठ किया घर पर। और उससे मुझे लगता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी की स्पिरिचुअल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर वो डायरेक्टली कॉलेजेस में चले जाते ना, जैसे +2 फिनिश हुई थी, तो वो मतलब वो एक सीधा कॉलेज में जाने वाली बात थी। लेकिन उस टाइम को हमने आपदा को उत्सव में बदलना, ये मैंने अपने गुरुदेव से सीखा। तो वो चीज़ को हमने इस तरह से यूटिलाइज़ किया, और आज जो मेरा बेटा है वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है। बाय हिज ग्रेस मैं यही कहूँगी, उसने ऑन कैंपस जॉब ना लेके ऑफ कैंपस अप्लाई किया, और उस समय बड़ी खटपटी थी मन में कि भेजूँ या ना भेजूँ, कि ऑन कैंपस इज़ बेटर ऑप्शन। लेकिन पता नहीं, बस एक एनर्जी है जो इंडिकेट हर बार करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी मुश्किल हो, कोई स्ट्रगल हो, तो जैसे ऊपर से संदेश आता है ना, उसके हिसाब से लाइफ चल पड़ती है, बस यही समझ लो। तो और जो बिटिया है मेरी, वो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर का हिस्सा है। जैसे आज तक मेरी कॉलेज की टीचर्स मुझे प्यार करती हैं, वो भी वहाँ पे सबका प्यार ले रही है, और ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सक्सेस बिल्कुल होना चाहिए लाइफ में जो आप लें, बट वैल्यूज़ जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए आपके अंदर। विजडम के साथ विंग्स हो, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। विजडम हो, विंग्स भी हों, और आप बहुत अच्छे से करें। स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ का स्टेपिंग स्टोन बनाएं, घबराएं नहीं, और सक्सेस अचीव कीजिए आप। राधे राधे एवरीवन। As a spiritual entrepreneur, we thank you, ma'am, for spiritually inspiring us and for showing us how far journey can take us. Now it's time to hear from Parul and Kirti. Please come on the stage and share your presentation with us on the women and entrepreneurs. कड़ी हो, हौसला जवान हो, हर मुश्किल में भी मुस्कान हो। जिन्होंने सपनों को बिजनेस में बदल दिया, आज उनके लिए तालियों का तूफान हो। Delighted to welcome Ms. Damanpreet Kaur, founder of Kids and Mom. Her dedication and hard work have created a wonderful space for kids and mothers. We invite her to come forward and address the gathering. Let's welcome her with a huge round of applause. Very good morning to all. Good morning, ma'am. Respected principal ma'am and my teachers. I'm ex-student of this college, and now I run a business, Kids and Mom, kidswear and women's boutique. And मैं 2013 to 18 इसी कॉलेज पे BCom, MCom, then फैशन डिज़ाइनिंग मंजीत मैम ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं जब टीचिंग करती थी स्कूल में, तो मैं वहाँ से जब मेरा छुट्टी होती थी, तो मैं उस टाइम के बाद मैम से कटिंग के लिए आती थी। और फिर उसके बाद मैंने 2019 में सोचा कि मैं बुटीक ओपन कर लूँ, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैंने नहीं ओपन किया। फिर उसके बाद मैंने एस्टेट क्लियर किया, देन प्राइवेट जॉब भी की, फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट की। ऐसे ही जब मेरा एस्टेट क्लियर हुआ, तो हमने बात की कि मेरा ना मन है कि चाहे मैं रिटायर होके अपना बुटीक खोलूँ, बट मैं ज़रूर खोलूँगी। तो मेरे हस्बैंड एंड मदर इन लॉ ने बोला कि अगर तेरे मन में इतना ही है, कि 5 इयर्स हो गए थे उस टाइम मेरी मैरिज को, कि अगर इतना तेरे मन में है तो आप ओपन कर लो। तो मैंने 2 इयर्स हो गए मुझे ओपन किए हुए बुटीक, तो जगाधरी में है किड्स एंड मॉम। तो अभी मेरा काफ़ी मतलब मेरे को अपने आप ही ऐसा अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने सही किया वो डिसीज़न लेकर। तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब के पीछे ही भागते रहो। जॉब एक सिक्योर तो है, बट अगर आपके मन में कोई इनोवेशन है, कोई आइडिया है या कोई पैशन है, तो आप उसको आज के टाइम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटी टेक्नोलॉजी
बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है आपको अपने किसी भी आइडिया को बिजनेस में चेंज करने के लिए। तो मैं सभी को ये बोलूँगी कि छोटे से शुरुआत करो चाहे, बट ज़रूर करो कि अपने आइडिया को सबके सामने लेकर आओ, कि जिससे कि आपकी कुछ ना कुछ छोटे से ही शुरू करो बट कुछ ना कुछ अर्निंग ज़रूर हो। तो थैंक यू मंजीत मैम स्पेशली, सुरेंद्र कौर मैम, निशी मैम ने तो मेरे को पढ़ाया भी हुआ है सेकेंड ईयर में। और थैंक यू सो मच टीचर्स एंड यू। Thank you, ma'am, for sharing your journey with us and motivating us to bigger dream and achieve more. दिखाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। We are delighted to welcome Miss Malika, a talented artist and creative force behind Malika Creativity World. Her journey reflects creativity, passion, and dedication. Ma'am, we invite you to address the gathering. The stage is yours. Please, ma'am. A very good morning to all, and firstly honorable chief guests and my teachers and principal ma'am too, and all my dear friends. फर्स्टली मैं यहाँ स्पीच देने नहीं आई हूँ, क्योंकि स्पीच में तो जहाँ मैं बैठती थी तो मैं भी ये सोचती थी कि भाई कब ख़त्म होगी, और इंग्लिश में तो खासकर तो इसीलिए बस एक जर्नी और कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं बताना चाहती हूँ। वैसे तो सबकी लाइफ में जो बिज़नेस वुमेन या बिजनेसमैन होते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी बिज़नेस हो उसमें सेम ही स्ट्रैटेजीज़ और सेम ही इश्यूज़ और रेजोल्यूशंस हम वो तो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं फॉर द सर्कमस्टांसेस। बट मैं ये चाहूँगी कि एक बिगनिंग जो होती है वो परफेक्ट कभी नहीं होती है। एक सक्सेस स्टोरी के लिए परफेक्ट बिगनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट एक करेज की ज़रूरत होती है कि एक करेज जो हम बिगिन करेंगे अपना। अब मैंने अपना जो बिज़नेस है वो ऐसे शुरू नहीं किया कि मुझे एक बिज़नेस प्लान है मेरे पास, नहीं। मैं एक चाइल्डहुड मेरा एक पैशन था कि मैं ये बनाऊँ, मैं वो बनाऊँ, इनोवेशन। कहीं पे जाती थी, कहीं पेंटिंग लगी होती तो मैं सोचती थी कि शायद मैं भी ये बनाऊंगी, और घर बनाती थी और वो टूटी फूटी पेंटिंग बना ली, और मम्मी कहती क्यों टाइम वेस्ट कर रही है अपना। ऐसे मेरी मम्मा भी जॉब में थे तो मम्मा को होता था कि घर का भी काम कर ले, क्योंकि मैं स्कूल से आऊँगी तो पीछे से मेरा ब्रदर छोटा था। छोटे होते से अब तक स्कूल में ऐसा था कि मैंने बहुत थप्पड़ खाए हैं अपनी मम्मी से, और स्कूल में जाके मम्मी ये भी बोलते थे कि अगर ये आर्ट रूम में गई तो इसकी टांगे तोड़ देगा, मतलब ये वाला सीन। और उसके बाद उस दिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मी आए थे इधर, तो आज मम्मी नहीं है तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ये चीज़। तो ऐसा था, बट उस दिन मम्मा मेरे साथ आए थे एंड शी इज़ वेरी प्राउड टू बी हेयर, एंड उनको बहुत अच्छा लगा। मैम ने भी बहुत, उनको भी रिस्पेक्टफुल बहुत फील हुआ यहाँ पे आके। तो इन 2016 मैंने ये अपना बिज़नेस जो पैशन बिज़नेस है वो एक प्रोफेशन में लेकर आई। वैसे आई एम वर्किंग इन एज अ लीगल शुरू किया था, और उस टाइम पे ये था कि एक एज अ गर्ल मुझे ये था कि मेरी फैमिली में इतना कुछ फॉर द गॉड ग्रेस था सब कुछ, बट मुझे था कि नहीं, फैमिली को प्रेशर नहीं करना, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि बॉयज़ थोड़े प्रेशर कर देते हैं कई बार कि मुझे ये चाहिए, पर गर्ल्स सोचते हैं कि अगर मैंने ये मांगा तो शायद मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर में आपको बताऊंगी कि एक MCA की फ़ाइल थी जो मेरी एक फ्रेंड की थी, और मैंने 10 रुपीज़ की शीट ली थी और 5 रुपीज़ का जो था वो पेन लिया था, जिससे फर्स्ट मेरी इनकम जो थी वो आई थिंक 100 and 150 रुपीज़ थी बस। और उसी से मुझे मोटिवेशन हुआ, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग मेरी मम्मी ने यहाँ पे पेंसिल डाल डाल के मेरी बहुत अच्छी की है, और आई थैंक्स टू माई मदर। और ये था कि वो शीट्स फाड़ देती थी कि नहीं, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग सही नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बिकॉज आज मैं अगर पेंटिंग करती हूँ या आज मैं लिखती हूँ, मैं फाइल्स बनाती हूँ, कार्ड्स बनाती हूँ, एंड कस्टमाइज कार्ड्स सिर्फ एक हैंड राइटिंग पे बेस्ड है। अगर आप सुंदर नहीं लिखोगे तो कोई आपकी चीज़ को खरीदेगा नहीं। तो फाइनेंशियली मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है, वैसे तो आजकल बहुत सपोर्ट है, सर ने सब कुछ बताया, मैम ने इतनी सारी मोटिवेशन स्किल्स बताई कि गवर्नमेंट भी हमारे पास है,
टीचर्स हैं, बल्कि मैम ने भी उस दिन बताया था कि वो भी उन चीज़ से जुड़े हुए हैं काउंसिल से, कि वो आपको मोटिवेट करते हैं, इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। बट जो मेरा ये था कि आजकल तो नहीं है, बट मेरे टाइम में वोकेशनल एजुकेशन का कोई रोल नहीं था, लेकिन तब ये था कि लोन लोगे, लोन उतारोगे कैसे, वो वाला सीन है। अब तो ये है कि लोन है, मैम ने उस दिन बताया कि गर्ल्स को है 10 lakhs देते हैं तो 7 lakhs ही हमें वापस करने पड़ते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द स्किल्स की वो स्किल्स को वोकेशनल एजुकेशन को लेकर आते हैं। तो मैंने फाइनेंशियली आपको बताया 10 रुपये से शुरू किया था, बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने क्या की, कस्टमाइजेशन, कि मेरे पास 2 टाइप के कस्टमर आते हैं। अगर आप लोग भी अगर कभी भी बिजनेस शुरू करोगे, फोकस ऑन द कस्टमाइजेशन, बिकॉज कस्टमाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कस्टमर लाइक बहुत लोग यहाँ यूज़ करते होंगे बॉडी वाइज। वो बॉडी वाइज क्या है, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट्स देते हैं। ऐसी ही कोई चीज़ें इमोशनली, मेरे पास 2 कस्टमर्स आते हैं। एक जो कहते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स लाइक फॉर आवर फियांसे, फॉर आवर रिलेशनशिप्स और अपने मदर के लिए, फादर के लिए हमें गिफ्ट्स बनाने हैं। बट दूसरा कस्टमर क्या कहते हैं कि हमें फॉर द गिफ्टिंग देना है। तो दोनों में यही फ़र्क है। जैसे मैम ने बताया कि हम अटैच रहते हैं, और रिलेशनशिप मैं कहती हूँ करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आजकल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम करियर में बहुत कुछ अर्न कर लेंगे, बट वो किसके लिए अर्न करेंगे, अपनों के लिए करेंगे, तो अपने होने भी ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ कि कस्टमाइजेशन उसका बहुत अच्छा करो जो रिलेशन के लिए अपने एफर्ट्स डाल रहा है। शायद मेरे को बहुत सुनने में आया था कि सब मुझे यही बोलते थे कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तो प्यार तो तेरा ही डल रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी सुनने में आई है। तो ये चीज़ मैं इसको ग्रेटफुल करती हूँ कि मैं पैसों के लिए वर्क नहीं करती, पैसे एक ज़रूरत है, लेकिन एक खुद को, अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद आप में से बहुत सारे होंगे जिसके पास, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसके पास स्किल्स नहीं होंगी, और कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे खड़ा होकर बोल नहीं सकता। एवरी गर्ल, एवरी बॉय हैव द स्किल्स, और वो कोई भी फील्ड में हो, और यही वोकेशनल चीज़ है। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैंने बताया, कस्टमाइजेशन की कस्टमर को क्या ज़रूरत है, उसकी क्या प्राइसिंग कर सकते हो आप, मेन यही है। और स्वॉट एनालिसिस ज़रूरी है। हमने पढ़ा, तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैंने एमकॉम बीएड इन इकोनॉमिक्स ही किया हुआ है। तो हमने एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं की, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं वहाँ पे डिग्री फ्रेम कर लूँगी ट्यूब के नीचे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने बिजनेस में लगा रही। एक स्वॉट एनालिसिस का शायद यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट्स हों, उनको पता है कि स्ट्रेंथ वीकनेस, जैसे सर ने बताया कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ तो हमें पता चल गई कि सबने कहा आपकी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, आज मैम ने बोला, थैंक यू सो मच मैम। और कि स्ट्रेंथ पता चल गई, वीकनेस पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीकनेस बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं और उनको अपनी लाइफ में रखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद थ्रेड्स क्या आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आती है। मुझे थ्रेड्स क्या आए, एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला क्या होता है, पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते तो पेरेंट्स को ये नहीं है कि आप उनसे लड़ लो, कि आप लड़ लिया कि भाई मैं आज के बाद बात नहीं करूँगी। ऐसे भी बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं कि नहीं करूँगी, आप मुझे ये नहीं करने दे रहे। मेरे टाइम में शायद मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपनी फैमिली से लड़ती नहीं हूँ, कभी अपोज नहीं करती, फिर भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि अपने आप को प्रूव करना पहले दुनिया को नहीं, अपने पेरेंट्स को करना पड़ता है, ताकि वो सपोर्ट करे। तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी 8th रैंक लिया है, नेशनल लेवल पे भी 3rd रैंक लिया है। तो शायद वही एक चीज़ है, मेरे फैमिली और शायद जो मैं आज सैलरी लेती हूँ उससे ज़्यादा सैलरी जो है, वो सैलरी भी क्या, जो अर्निंग्स है वो मैं अपनी इस बिज़नेस से करती हूँ। एक पेंटिंग जो है वो, अगर मेरी जो लेटेस्ट पेंटिंग है वो 45,000 की गई है और मेरी सैलरी कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो एक सैलरी एक वो है कि मैं एक्टिव हूँ बस। जैसे पहले ये सब कहते हैं ना कि अब तो एक नीड हो गई है कि हमें जॉब करनी ही करनी है, बट एक मेरा ये मानना होता है कि हम जॉब एक एक्टिवनेस के लिए अपना मेंटल, हम अगर 10 लोगों से मिलेंगे, आज मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ शायद मैं उनके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकती। अगर मैं
यहाँ पे मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं इतने अच्छे और इतने एंटरप्रेन्योर्स को मिलूँगी कि मुझे भी सीखने को मिलेगा। और एक स्ट्रैटेजी ये है कि जहाँ पर सीखना बंद कर दिया आपकी लाइफ ख़त्म है। मेरे जैसे लोग भी हैं जिनसे मैं सीखती हूँ, शायद वो मुझसे भी बहुत छोटे होंगे, बट स्किल्स एज मैटर नहीं करती। आज मैम ने भी यही चीज़ बोली थी, मैम ने भी बोली थी कि एज मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करते हैं। और एक गर्ल के लिए मेरी दादी जी कहते थे, शी इज़ नो मोर नाउ, बट वो कहते थे कि लड़की को एक सुई बनाने से लेकर एक जहाज चलाने तक भी सब कुछ आना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट बहुत सारा टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगी कि जो स्टार्टअप लेना, ये नहीं है कि जो आपके पास है, मेरे पास 10 रुपये थे तो 10 रुपीज़ से मैंने यहाँ तक आई हूँ, तो अगर आपके पास 5 रुपीज़ भी हैं तो आप 5 रुपीज़ में भी बहुत कुछ ढूंढ सकते हो। 5 रुपीज़ में आजकल कहते हैं कुछ नहीं मिलता, बट 5 रुपीज़ का पेन ज़रूर मिलता है। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable experiences and inspiring us with your journey. Now it's presentation time. I would like to call Parul and Kirti come on stage and share your presentation. I am Parul Tyagi. I am Kirti. Today we are going to speak on the topic women entrepreneurship. Women entrepreneurship means women taking initiative to start, manage and develop their own businesses. In today's world, women are not only participating in workforce, but they are also becoming a successful entrepreneur. Next slide, please. A woman entrepreneur takes important decisions, takes calculated risks, and works toward making a business successful. It also gives a woman financial independence and allows them to use their skills and creativity. At the same time, successful women entrepreneurs can create job opportunities for others. Women entrepreneurship is important for both men and women. Firstly, it helps women to become financially independent. Secondly, women entrepreneurs can create employment opportunities for the contribution of the growth of the society. Entrepreneurship develops confidence, leadership and decision-making skills in women. Most importantly, it helps to reduce gender inequality by giving women equal opportunity in the society. Next slide, please. A successful woman entrepreneur needs several qualities like confidence, leadership skills, team and management. Creativity helps her find new ideas and solutions. Finally, determination and adaptability are very important because business face difficulties and they must be ready to learn and improve. With this, I will hand over the presentation to the next speaker to take it forward. One major challenge is access to finance, as women may face difficulties in getting loans and investments. Social expectations and family responsibilities can make it difficult for women to give enough time to their businesses. Sometimes they face gender discrimination, so these challenges can slow down their growth. To promote women entrepreneurship, women need proper support and opportunities. They should have easier access to finance, education, training and skill development programs. Mentorship and networking can help them learn from experienced entrepreneurs. Along with government support, families and society should encourage women to take business decisions and pursue their ambitions. Next slide. India has many inspiring women entrepreneurs who have shown that women can succeed in different fields. Kiran Mazumdar-Shah, the founder of Biocon, became a leading name in India's biotechnology sector. Falguni Nair, the founder of Nykaa, built a successful beauty and lifestyle business. Vinita Singh, co-founder of Sugar Cosmetics, is another example of a women building successful modern business. Their journeys show the importance of confidence,
determination, and innovation. Next slide. To conclude, women entrepreneurship is not just about starting a business or earning money. It is about independence, confidence, leadership, and empowerment. When women get equal opportunities and proper support, they can contribute greatly to their families, communities, and economy. Women entrepreneurs are not just building businesses, they are building a better future. Thank you. And Kirti for this wonderful, informative presentation. Up next we have Anshika and Sakshi. Let's welcome them to the stage for their presentation. Good morning to everyone present here. I am Anshika and this is Sakshi. And today we will be presenting on women entrepreneurship. Women entrepreneurship is defined as a woman or a group of women who initiates, organize and run a business. Means a woman या फिर group of women जो अपना छोटा मोटा कोई भी business start करती हैं उन्हें women entrepreneurs कहते हैं. Next is importance of women entrepreneurship. First one is economic growth and jobs. Second one is GDP contribution and third one is social and family upliftment. अगर एक वुमेन कोई भी जॉब कर रही है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशली कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट करती हैं. इकोनॉमिकली हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर कोई वुमेन अपना बिजनेस कर रही है तो वो बेसिकली क्या करेगी, हमारी जो GDP है उसको अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सेकेंड इज फैमिली अपलिफ्टमेंट. अगर एक वुमेन कोई भी बिजनेस कर रही है, कुछ जॉब कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने लिए भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है और अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. की क्वालिटीज एंड ट्रेड्स. फर्स्ट वन इज एम्बिशन एंड हार्ड वर्क. अगर एक कोई वुमेन कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, सबसे पहले उनको अपना जो गोल है दैट इज प्री डिटरमाइंड गोल, उनको उसको डिसाइड करना चाहिए. एंड विद हार्ड वर्क वो बहुत ज़्यादा 100% चांसेस है कि हाँ अगर वो हार्ड वर्क करेंगे तो उनको 110% उसमें उनको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगी ही होंगी. रिस्क टेकिंग एबिलिटी. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो आप स्टार्ट करेंगे और वो साथ के साथ आपका बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा. थोड़ी थोड़ी रिस्क आएंगी, आपको अपने आप को एक स्टेबल, अपना माइंड स्टेबल करना पड़ेगा कि अगर कोई रिस्क आती है तो हम उसको फेस करें. इनोवेटिव थिंकिंग. जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है तो नए नए ट्रेंड्स भी आते हैं, तो वुमेन को क्या करना चाहिए, उन ट्रेंड्स को फॉलो करके अपने बिजनेस के अंदर न्यू आइडियाज़ को एस्टेब्लिश करना चाहिए. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर. सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, रिस्क बेयरिंग, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. सीकिंग अपॉर्चुनिटीज. अब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उस एरिया में क्या क्या चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है, तो हम उसी से वही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बैग मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, कोई ऑफिस गोइंग है, तो सबको क्या है, बैग की नीड है, तो हम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमारा बिजनेस डेवलप होगा. चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. जब भी कोई वुमेन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उनको ना बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जैसे कि सोशल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स. कई लोगों की थिंकिंग, इवन मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है कि भाई ये तो लड़की है, इसे नहीं करना चाहिए. तो आप लोगों को उस चीज़ को गलत प्रूव करना है कि हाँ अगर हम लड़की हैं हम ये नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत है, हम लड़की हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. अदिति गुप्ता सोशल एंटरप्रेन्योर है, और गज़ल अलग जो फाउंडर ऑफ मामाअर्थ फेमस कंपनी, फाल्गुनी नायर जो फेमस कंपनी नायका है उनकी फाउंडर है, और विनीता सिंह जो है वो फाउंडर ऑफ शुगर कंपनी. कंक्लूजन. अगर एक वुमेन डिटरमाइन कर ले कि उन्होंने कोई बिजनेस करना है, या सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उन्होंने किसी भी फील्ड में जाना है, तो बिल्कुल भी ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है. एक वुमेन चाहे, एक लड़की चाहे, वो अगर कुछ सोच लेती है तो वो उसको 110% अचीव करके रहती है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. As we conclude this spectacular day, a massive thank you to our principal ma'am, our esteemed chief guests and alumni for their visionary support, wisdom and inspiration.
finally to the true soul of today and brilliant girls of DAV. Keep dreaming big, take risks, and go on with the business world. Thank you and Jai Hind.